Hello students, this is Dr. Shubha Diwan from Biotechnology Department, St. Thomas College, Bhilai. In this video, we'll discuss the topic Modifications in RNA, which is a topic from MSc Biotechnology second semester, paper 6, Molecular Biology. Here are the contents. Now starting with the topic, we all know that for protein synthesis, the information is encoded in the DNA, and DNA is found in the nucleus, right? So this information for protein synthesis from DNA is copied to RNA, is copied in the form of messenger RNA, right? And this RNA will migrate from nucleus to cytoplasm, where it has the information for protein synthesis, and in the cytoplasm protein synthesis occurs, right? So this RNA molecule, there are many types of RNA molecule in the cell. The three major RNA molecules, messenger RNA, ribosomal RNA and tRNA, right? So these RNA molecules, basically these RNA molecule which is newly synthesized is known as primary transcript. Okay, this primary transcript undergo extensive processing. All the RNAs, especially in eukaryotes, in bacteria, some of the RNA gets processed, while in eukaryotes, all the RNA undergoes extensive processing, and after this processing, they form mature RNAs. They form mature mRNA, functional tRNA or rRNA from the primary transcript. So the primary transcript of eukaryotic mRNA and tRNA of both bacteria and eukaryotes undergo significant processing. So in this video, we'll see how these processing occurs in all these three major types of RNA. Starting with the processing of messenger RNA. Messenger RNA basically carries the information from the DNA, right? It carries the message from DNA for protein synthesis. In eukaryotes, there are three types of processing that occurs in mRNA. First is capping, a 5' cap, that is, the mRNA has two ends, all we know that, a 5' end and a 3' end, right? So in the 5' end, guanine cap is added. This guanine which is added at 5' end is again methylated. So we can say that addition of 7-methyl guanylate cap in the 5' end, right? Now second processing that occurs is splicing. Splicing means removal of introns and joining of exons. We'll see this topic in the further slides. Third is polyadenylation, addition of poly A tail to the 3' end. Okay, so at 5' end, cap is added, in between introns are removed, and last one is at 3' end of messenger RNA, polyadenylation, that is poly A residues, adenine residues are added. And in some of the RNA, some of the messenger RNA editing is also done. So first one we'll see is capping. Capping is a process which is the first event. We can say that it is done in very initial stage of transcription. जब ट्रांसक्रिप्शन होता है मैसेंजर आरएनए का, जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगा, तो अर्ली स्टेज में जब वो 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड्स ही उसमें बने हैं, तभी आरएनए कैपिंग हो जाती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेसिंग इवेंट of RNA processing, in which a guanine residue is added to the 5' end. Now what is unusual is that ये जो guanine ऐड होगा, उसका जो लिंकेज है, जो guanine एक्स्ट्रा आके ऐड हुआ है, उसका लिंकेज एग्जिस्टिंग RNA से 5' लिंकेज होता है, जबकि हमने हमेशा देखा है कि mRNA या DNA में 5' और 3' लिंकेज होगा. ओके, अभी देखिए कैसे होगा. यहाँ पे फर्स्ट जो आपको दिख रहा है स्लाइड में, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में गुआनिन डायग्राम में गुआनिन रेसिड्यू है विथ कंसिस्टिंग ऑफ 3 फॉस्फेट्स, और राइट साइड में आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जिसकी प्रोसेसिंग होनी है. ओके, सो नाउ द आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज विल act on the mRNA. Triphosphatase, that means an enzyme that will degrade फॉस्फेट. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि एक फॉस्फेट, यहाँ पे आरएनए का जो गामा फॉस्फेट था वो रिमूव हो गया. रिमूव होने के बाद नाउ द बीटा फॉस्फेट विल जॉइन टू द अल्फा फॉस्फेट ऑफ गुआनिन रेसिड्यू. ओके, इनकमिंग गुआनिन रेसिड्यू.
which is conducted by guanyl transferase. Okay, नाउ अब ये एडिशन आप देख सकते हैं 5 प्राइम लिंकेज थर्ड स्टेप में आपको दिख सकता है कि ये 2 फॉस्फेट लिंक्ड हुए हैं 5 प्राइम लिंकेज से. सो जो डार्क ब्लू में दिख रहा है आपको, ये गुआनिन का कैप है जो कि आके mRNA में ऐड हो गया है. नाउ दिस गुआनिन इज मिथाइलेटेड एट 7th पोजिशन, राइट. द एंजाइम विच कैटलाइजेस दिस रिएक्शन इज मिथाइल ट्रांसफरेज. सो मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ. मिथाइल ग्रुप आया कहाँ से? तो एस एडिनोसिल मीथियोनिन जो है ये एक डोनर का काम करता है और मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है गुआनिन को. सो नाउ यू कैन सी इन द लास्ट स्टेप द आरएनए, जिसका जो पहले नॉर्मल आरएनए था, अब उसके 5 प्राइम एंड पे गुआनिन ऐड हो गया है और गुआनिन के 7th पोजिशन मिथाइलेटेड है, तो हम इसको बोलेंगे 7 मिथाइल गुआनिन कैप है. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ये जो एंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा. So this cap 5 prime cap will protect the mRNA from ribonucleases. It also helps in the binding of ribosome during translation process. आगे जब ट्रांसलेशन होगा तो यहीं पे 5 प्राइम कैप पे आके राइबोसोम बाइंड करेगा और वो फर्दर स्कैन करेगा आगे के AUG सीक्वेंसेस के लिए, जो हम आगे आप दूसरे वीडियोस में देखेंगे. और नेक्स्ट है, लास्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल. दिस कैप ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल from the nucleus to the cytoplasm, right? Second processing is RNA splicing. Now what is RNA splicing? First of all we need to know that the primary transcript जो फॉर्म होता है वो एनकोड हुआ है जीन से, right? अब ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हुआ है इसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं जो प्रोटीन कोड करेंगे और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी है जो प्रोटीन कोड नहीं करेंगे. मेजरली जो प्रोटीन कोड नहीं करते हैं they are known as introns, और जो प्रोटीन कोड करते हैं they are known as exons. So this same thing is written in the slide that in eukaryotes the coding sequence of protein coding gene is periodically interrupted by stretches of non-coding sequence. जो कोड कर रहे हैं प्रोटीन वो इंटरप्ट हो रहे हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस से, तो ये जो कोडिंग सीक्वेंस उनको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग है उनको इंट्रॉन. तो जो नॉन कोडिंग है, जो उनको प्रोटीन बनाना नहीं है, उनको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. सो द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स from pre-RNA is called splicing. You can see in the diagram that dark green colors are exons, exon 1, 2, 3 and 4, which are interrupted by introns, intron 1, intron 2, intron 3, right? So these introns need to be removed. और जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, डायग्राम में जीनोमिक डीएनए बनाया गया है, पहले जीनोमिक डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में एज इट इज कॉपी हुआ है सीक्वेंस. नाउ फ्रॉम दिस सीक्वेंस the introns, intron 1, intron 2, intron 3 are removed, right? And the exons joined together 1, 2, 3 and 4. So this is known as splicing, removal of introns and joining of exons. The diagrams is taken from the book Watson. You can refer the book also. Now the chemistry of RNA splicing. How this RNA splicing occurs? We can see, first of all, we need to see that the RNA जो इंट्रॉन्स हैं, राइट, उनमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम में लाइट ग्रीन कलर से इंट्रॉन बनाया गया है जो कि फ्लैंकिंग है, आजू बाजू उनके सीक्वेंसेस हैं एक्सॉन के जो कि डार्क ग्रीन कलर से है. सो इंट्रॉन्स बेसिकली कंटेन द सीक्वेंस फॉर स्प्लाइसिंग. एट 5 प्राइम स्प्लाइस साइट AG सीक्वेंस किस में दिख रहा है? एक्सॉन में, और GU सीक्वेंस है इंट्रॉन में. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है GU. जो भी सीक्वेंसेस इंट्रॉन के हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे, उसमें क्या दिख रहा है? GU सीक्वेंस है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है ये ना. सेकेंड होता है ब्रांच पॉइंट, सेंटर में एक एडेनिन रेसिड्यू मिलता है जो कि एंटायरली इंट्रॉन के अंदर होगा, उसको बोलेंगे ब्रांच पॉइंट. और तीसरा है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे AG सीक्वेंस प्रेजेंट है, right? So GU at 5 prime, A adenine residue at branch point and AG sequence at 3 prime end of intron. Now how the reaction occurs we'll see in this slide. There are 2 trans esterification reaction, और इन reactions की मदद से ये जो इंट्रॉन सेंटर में है, 2 एक्सॉन्स के बीच में है, वो रिमूव हो जाएगा. तो स्प्लाइसिंग अकर्स बाय 2 रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? जो ब्रांच साइड हमने देखा, ब्रांच साइड में क्या था? एडेनिन रेसिड्यू था. तो एडेनिन का 2 प्राइम OH, राइट.
हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है will act as nucleophile and will attack at 5' splice site. 5' splice site का जो फॉस्फेट है आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है रेड कलर के एरो से कि वो अटैक करेगा और इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो 5' एंड का स्प्लाइस साइट था वो फ्री हो गया। तो 5' जो एक्सॉन, लेफ्ट वाला एक्सॉन जो है उसमें जो गुआनिन है उसका OH फ्री हो गया और यहाँ पे ब्रांच पॉइंट पे एक लैरिएट शेप का इंट्रॉन लैरिएट शेप के फॉर्म में आ गया है। नाउ जो OH 5' स्प्लाइस साइट में फ्री हुआ है, नाउ दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा किसको, 3' स्प्लाइस साइट को। तो जब ये दोनों ये उनको अटैक करेगा 3' स्प्लाइस साइट को, तो इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी और बीच का इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन अकर्स एंड द इंट्रॉन गेट्स रिलीज्ड। जो भी प्रोसेस हमने अभी पिछले स्लाइड में देखी हैं कि ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट का OH अटैक कर रहा है एक पोजीशंस पे, फिर वहाँ के 5' का OH अटैक कर रहा है 3' पोजीशंस पे। ये होता कैसे है, क्योंकि mRNA है तो इनको क्लोज लाने के लिए जो ब्रांच पॉइंट या 5' स्प्लाइस साइट है, अटैकिंग साइट्स को क्लोज लाने के लिए हमें किसी ना किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी एंड दिस कैटलिस्ट आर बेसिकली स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम मशीनरी, ये जो प्रोटीन्स हैं जो इनको ब्रांचिंग पॉइंट्स को 5' एंड को पास लाते हैं ताकि इनके बीच रिएक्शन हो सके, तो ये पूरे मशीनरी को कहा जाता है स्प्लाइसियोसोम, राइट, जो स्प्लाइस कंडक्ट करा रहे हैं, स्प्लाइसिंग कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये स्प्लाइसियोसोम बने किससे हैं, ये बेसिकली तो प्रोटीन्स हैं ही, लेकिन इनको रीड किसको करना है, RNA को, राइट। तो ये बने होते हैं RNA और प्रोटीन से। सो 5 टाइप्स ऑफ RNA, इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन के फॉर्म में आते हैं। न्यूक्लियर RNA मिलेगा किससे, प्रोटीन से, तो बन जाएंगे SNRNPs और ये SNRNPs U1 से लेके U1, U2, U4, U5, U6 ये मिलके स्प्लाइसिंग कंडक्ट कराते हैं। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, जो ब्रांच पॉइंट है उसको ब्रांच बॉन्डिंग प्रोटीन BBP यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि पार्ट है U2AF 65 और 35 प्रोटीन का, राइट। तो यहाँ पे U2AF 35 और 65 जो प्रोटीन है ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन, और तीसरा है U1, ये तीनों मिलकर किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक 5' पे आके बैठेगा, प्लेस होगा, एक एडेनिन रेसिड्यू पे ब्रांच पॉइंट में आके प्लेस होगा और एक 3' स्प्लाइस साइड में प्लेस होगा। तो इनका काम क्या था, ये तीनों ही जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहाँ पे आके प्लेस हो जा रहे हैं अपने अपने वर्क के लिए। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोटीन आया U2 विल डिस्प्लेस BBP फ्रॉम द ब्रांच पॉइंट, वहां से हट गया। उसके बाद 3 और प्रोटीन्स आए हैं U4, 5 और 6, ये आगे बाइंड किए, इनकी एफिनिटी U1 से भी है और U2 से भी है। दैट इज वाई अ बेंडिंग ऑकर्स इन द RNA, एक बेंड शेप बना, यहाँ पे U शेप बना है RNA में, U1 विल गेट डिस्प्लेस्ड, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें U4 बाहर निकल गया, तो इसकी वजह से अब फिर एक रिएक्शन होगा, राइट। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि लैरिएट शेप का जो हमने ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था वो रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हुआ और फाइनली इंट्रॉन विल गेट रिलीज, एक्सॉन विल गेट जॉइंट। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नोन एज E कॉम्प्लेक्स, देन A कॉम्प्लेक्स, देन B कॉम्प्लेक्स, लास्ट बट वन इज C कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इस तरीके से स्प्लाइसियोसोम मशीनरी, दैट इज प्रोटीन्स की हेल्प से स्प्लाइसिंग हो रहा है, किसमें, न्यूक्लियर प्री mRNAs में, जो नॉर्मल प्री mRNAs है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उनमें। नाउ जो ये स्प्लाइसिंग हमने अभी पढ़ा स्प्लाइसियोसोम की मदद से, ये नॉर्मल प्री mRNAs में होता है। अभी जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स कई तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन्स अभी जो हमने देखा उसमें क्या था, इंट्रॉन्स का रिमूवल किसकी हेल्प से हो रहा है, प्रोटीन की हेल्प से, स्प्लाइसियोसोम प्रोटीन की हेल्प से। ऐसे और भी कुछ इंट्रॉन्स होते हैं जिनमें इन प्रोटीन्स की हेल्प नहीं लगती है। तो दीज ग्रुप ऑफ introns are known as self-splicing introns. They conduct their own splicing, right? They can be divided into 2 groups, group 1 intron and group 2 introns. So what is the difference between these mechanisms? You can see from this diagram. The left hand side one is pre-mRNAs, which is being catalyzed by spliceosome machinery. Group 2 intron has the same mechanism of removal of intron. The same branch point AOH will
attack on 5' splice side, then 5' splice side which will attack well on 3' splice side. But they do not need any protein, any splices of machinery. They will catalyze their own splicing, right? And third one is group 1 splicing. इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इंटरनल गुआनिन जो रेसिड्यू है वो अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट में, और आप देख सकते हैं कि जो इंट्रॉन का रिमूवल है वो लैरिएट शेप में नहीं है. वाइल इन प्री mRNA और ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं वो लैरिएट शेप में रिमूव हो रहे हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है. ओके, so these are self splicing introns which itself folds into a specific conformation within the precursor RNA and catalyze their own splicing. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब है कि एक ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से 2 डिफरेंट mRNA का बनना. हम ये जानते हैं कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, मतलब एक कोडॉन है, तो उससे एक ही RNA बनेगा और एक ही प्रोटीन बनेगा. बट ऐसा होता है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कोडॉन्स एक हैं, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, उससे 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं. वो कैसे होगा वो यहाँ पे दिख रहा है आपको. सॉरी, यहाँ पे द सिंगल RNA कैन प्रोड्यूस मल्टीपल RNA प्रोडक्ट्स बाय चेंजिंग इन स्प्लाइसिंग जंक्शन. एग्जाम्पल इज अल्फा एंड बीटा ट्रोपोनिन. अल्फा और बीटा ट्रोपोनिन दोनों के ही कोडॉन सेम है, दोनों का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट सेम है. स्प्लाइसिंग डिफरेंट हुई तो उनके एक्सॉन की जॉइनिंग डिफरेंट हो गई, कोडॉन्स थोड़े डिफरेंट हो गए और उसकी वजह से 2 अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ है. यू कैन सी इन द डायग्राम दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन एक्सॉन 1, 2, 3, 4 and 5. When it is spliced in the form of 1, 2, 3 and 5 and 4th exon is skipped, it forms alpha troponin, and when the intron 3 is skipped, exon 3 is skipped, 1, 2, 4 and 5 joins, it forms beta troponin. So this is known as alternative splicing. Third one is polyadenylation. In polyadenylation, the addition of poly A tail to mRNA. Okay, so the addition of poly A tail to mRNA occurs while with the we can say that it is coupled with the termination of transcription process. ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो प्रोसेस है, जब RNA का फॉर्मेशन हो रहा है उस वक्त ही जब टर्मिनेशन होगा तो ये इंटरनल सीक्वेंस में टर्मिनेशन होगा mRNA के, और वो इंटरनल सीक्वेंस में टर्मिनेशन हुआ है उसी 3' एंड जो जनरेट हुआ, इन दैट ओनली द एडेनिन रेसिड्यूज आर एडेड. ओके, सो दिस इज you can see in the diagram the enzymes CSTF and CPSF. These are the enzyme which catalyze poly A tail formation. These are basically placed or recruited on the RNA polymerase. The RNA polymerase which is doing transcription, it has a CTD terminal. ये ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा है कि CTD टर्मिनल होगा उनका, और वो CTD टर्मिनल पे के जो टेल है यहाँ पे 2 एंजाइम्स प्लेस्ड हैं, CSTF और CPSF. जैसे ही पॉली ए सिग्नल, एक सिग्नल है जिस जगह पे पॉली ए टेल ऐड होना है, जैसे ही वो सिग्नल DNA से RNA में ट्रांसक्राइब हुआ, ये दोनों ही एंजाइम्स आके पॉली ए सिग्नल्स पे प्लेस हो जाएंगे एंड दे विल मेक एन इंटरनल क्लीवेज. क्लीव हुआ और RNA वहाँ से रिलीज हो गया, तो ये टर्मिनेशन की प्रोसेस भी हो गई. अब ये जो RNA रिलीज हुआ उनमें एक 3' एंड जनरेट हुआ है, यहाँ आएगा पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वेयर इट विल ऐड अप टू 200-250 एडेनिन रेसिड्यूज, एंड दिस इज नोन एज, जो एडेनिन ऐड हुआ 3' एंड में, इसी को हम बोलते हैं पॉली ए टेल. सो द RNA polymerase CTD tail contains enzymes involved in the process, and this tail protects the mRNA molecule from enzymatic degradation in the cytoplasm, export of mRNA from nucleus and for translation. Okay, now in the previous slides we have completed the processing of messenger RNA, which included 3 types of processing: capping, splicing and polyadenylation. Now let's see the process of processing of ribosomal RNA. In bacteria, these ribosomal RNA basically are formed from a single precursor. Single precursor पहले बनेगा, both बैक्टीरिया में भी और यूकेरियोट्स में भी.
बैक्टीरिया में इस प्रिकर्सर को 30S प्रिकर्सर कहते हैं और यूकेरियोट्स में ये प्रिकर्सर होता है 45S। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द प्रोसेसिंग ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए। इनमें जो कोडॉन से 16S का और 23S राइबोसोमल आरएनए के जो रीजन्स हैं वो एनकोड हुए हैं एक सिंगल प्रिकर्सर के अंदर, जिसको लिखा जा रहा है 30S राइबोसोमल आरएनए। ओके, और इनके बीच सीक्वेंसेस भी हैं टीआरएनए के। सो अलग अलग मॉडिफिकेशंस होंगी इनमें, जो दीज मॉडिफिकेशंस इंक्लूड मिथाइलेशन एंड स्यूडोयूरिडिन एडिशन, डाईहाइड्रोयूरिडिन फॉर्मेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शंस होंगी। और ये जो 30S का प्रीकर्सर है दैट विल बी क्लीव्ड। ओके, और ये क्लीव होने के बाद फाइनल फॉर्मेशन होगा इनका 16S आरएनए अलग होगा, 23S अलग होगा और 5S अलग होगा। नेक्स्ट वन इज processing of eukaryotic ribosomal RNA. This eukaryotic ribosomal RNA again comes from different ribosomal RNA comes from 45S precursor. The 45S precursor contains the sequence for 18S, 5.8S and 28S, while 5S is separately synthesized in a different RNA polymerase. So SNO RNPs, SNO small nucleolar, as we can see, we know that the राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो आरएनएज होंगे, यहाँ जो प्रोटीन्स हेल्प करेंगे वो होंगे स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए प्लस प्रोटीन्स। सो दिस विल अगेन विल डू मिथाइलेशन, स्यूडोयूरिडिन फॉर्मेशन और दूसरे मॉडिफिकेशंस जो है वो यहाँ पे होंगे। और इन क्लीवेज के बाद जो फाइनल जो आरएनएज बनेगा वो होगा 18S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S, 28S एंड 5S ribosomal RNA. Now, last one is processing of tRNA. tRNA are derived from longer precursors by enzymatic removal of nucleotides from its ends. Okay. इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की है। पहली है 5' एंड जो है, 3' एंड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होंगे, और जो इंट्रॉन्स हैं, एक 14 न्यूक्लियोटाइड का इंट्रॉन्स मिलता है यूकैरियोटिक टीआरएनए में, तो वो भी रिमूव होगा। प्लस वी ऑल नो दैट टीआरएनए एट इट्स 3' एंड कंटेन्स अ सीसीए सीक्वेंस। तो ये सीसीए सीक्वेंस पहले से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में नहीं होता, ये सीसीए सीक्वेंस ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन ऐड होगा। तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो पहला we can see that the 5' end is cut by RNase P enzyme, the 3' is processed by RNase D enzyme, right? Now the base modifications occurs and CCA is added by tRNA nucleotide transferase. This is an enzyme which is a template independent enzyme. This enzyme uses template only for binding, which carries CCA precursors in 3 different active sites. अलग अलग एक्टिव साइट में ये 3 precursors कैरी करता है, C, C और A का, and it will catalyze the bond and which is added to 3' end. Okay. Now the further modifications like methylation, deamination, reduction also occurs. The final step, ये इतने modifications प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम है। एक स्टेप डिफरेंट है कि 14 न्यूक्लियोटाइड्स का इंट्रॉन्स मिलता है यूकैरियोट्स में, और ये इंट्रॉन भी रिमूव होगा, एंड फाइनली द मेच्योर टीआरएनए इज फाउंड. This diagram I have referred from the Principles of Biochemistry by Nelson and Cox. You can also see this diagram or any other references from the book. This is a declaration.